ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Good afternoon to one and all. So today we are discussing about the measure of central tendency. In prior class, we could discuss the concept of biostatistics and the nature of the data. Basically, what exactly data stands for and what are the different level of data to be measured during the course of research. और हमें विगत की क्लास से ये पता चली है कि जो डेटा होता है वो रिसर्च के दौरान इकट्ठा किया जाने वाला एक एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है और डेटा का मापन 4 स्तर में किया जा सकता है। सबसे लो कैटेगरी की जो डेटा होता है उसको हम नॉमिनल कहते हैं, फिर सेकेंड कैटेगरी के डेटा को हम ऑर्डिनल कहते हैं, थर्ड कैटेगरी की जो डेटा होती है उसको हम इंटरवल कहते हैं, जो फोर्थ लेवल होता है उसको हम रेशियो कहते हैं। So on the level of the measurement, data can be categorized into 4 types: nominal, ordinal, interval, and ratio. These are the points what we could discuss in the previous class. So as I told you, today's subject matter is the measure of central tendency. Let me proceed ahead for the deliberation of the subject matter by sharing the slide, especially to make it more scientific and systematic. I hope मेरी डाटा आपको दिखाई पड़ रही होगी. Let me couple of seconds to highlight it. Okay. So dear friends, measure of central tendency stands for the computation of the single data to represent the whole data. हमारे पास एक रॉ डेटा सेट हो और उस रॉ डेटा सेट से हमें आवश्यकता के हिसाब से कोई रिप्रेजेंटेटिव फिगर का आकलन करना हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो स्टैटिस्टिकल मेजर निकालते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। यानी मैंने आपको जब बायोस्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट बताया था तो उस समय ये बात निवेदन किया था कि बायोस्टैटिस्टिक्स के यानी स्टैटिस्टिक्स के बेसिकली 2 ब्रांच होते हैं। एक का नाम है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, दूसरे का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की वो ब्रांच जिसके तहत हम किसी डेटा से संबंधित कोई सिंगल फिगर निकालना चाहते हैं, यानी ओवरऑल डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए उसमें से कोई सिंगल मेजर कंप्यूट करते हैं, तो हम उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर डेटा के एनालिसिस जो हमने रिसर्च के दौरान हाइपोथेसिस सेट कर रखा है वो सही है या गलत है, यानी उसकी वैधता को परखने के लिए की जाती है, तो उसको हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी बायोस्टैटिस्टिक्स के 2 ब्रांच है, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स।
तो जो आज हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको सिंपली सेंट्रल टेंडेंसी भी कहा जाता है। इसमें मूल रूप से हम किसी भी डेटा सेट से संबंधित एवरेज वैल्यू और मिडल पार्टीशन वैल्यू और मोस्ट फैशनेबल वैल्यू, ये तीन की बात विशेष रूप से करेंगे। तो साथियों, जो मैं आज यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ये ग्राफिकल चार्ट में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कवरिंग मीन, एवरेज, मीडियन, सेंट्रल पार्टीशन वैल्यू, मोड, मोस्ट फैशनेबल और आई हैव टू से मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। Similarly, the variation, the measure of dispersion covering range, variance, standard deviation, all these come under the descriptive statistics. And in today's deliberation, we'll be more focused on the discussion of the measures of central tendency, particularly mean, median, and mode. So descriptive statistics is more about summarizing the bulk of data into single figure. It's more about data summarization, and that's more about the computation of some sort of a statistical measure to represent the entire data in the terms of mean, median, mode, standard deviation, average deviation, etc. Okay, let us talk what exactly measure of central tendency stand for. Measure of central tendency means middle of the distribution. So the central means middle, tendency or sort of characteristics, I have to say a sort of property that informs about the entire data set. So the simply measure of central tendency refers to the middle of the distribution, or I have to say value or parameter which serves as single estimate of a series of data. I have to say data set. And that is more or less the mental picture of central value. But in fact, if we look at the three measures of the central tendency, mean is of course a sort of central measure. Again, mode being the partition value that comes at the center, but in fact the median being the middle partition value again comes as the central partition value, but mode in fact is not central value. मोड का मतलब तो थोड़ा अलग होता है। जो वैल्यू ज्यादा फैशनेबल होता है, ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है, उसको हम मोड कहते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते ही हमारे दिमाग में एक सेंट्रल वैल्यूज की पिक्चर जरूर आती है, लेकिन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत जो तीन मेजर्स की गणना की जाती है, मीन, मीडियन, मोड, उसमें से मीन ऑफ कोर्स एक एवरेज वैल्यू है, तो दैट कम्स मोर और लेस around the center of the data set. मीडियन भी सेंट्रल पार्टीशन वैल्यू है, तो उसको भी हम सेंट्रल फिगर के रूप में जरूर परसीव कर सकते हैं। लेकिन मोड का कंसेप्ट थोड़ा अलग है। मोड तो किसी भी डेटा में जो वैल्यू सबसे फैशनेबल होता है, जब से फ्रीक्वेंट होता है, उसको हम मोड कहते हैं। तो let me clarify the same thing. If we look at the three measures of the central tendency, मीन, मोड और मीडियन, तो मीन और मीडियन तो सेंट्रल वैल्यू के रूप में परसीव होते ही हैं, लेकिन जो मोड है वो वास्तव में मोस्ट फैशनेबल वैल्यू है। तो हम किसी भी डेटा सेट से ये तीन अलग तरह के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की गणना करके अलग अलग डेटा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। I mean, we can compute the measures of central tendency from different data set for the comparison. One central value around which all other observations are dispersed. यानी of course जो descriptive statistics है, उसमें भी मुख्य रूप से measure of central tendency है, उसमें हम सिंगल फिगर ही कंप्यूट करते हैं और उसके द्वारा
ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आई हैव टू से डेटा सेट है, उसके बारे में अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत जो सबसे प्रचलित मेजर है वो है मीन। वैसे मीन अर्थमेटिक भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है, हार्मोनिक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमारी जो कोर्स का स्कोप है उसके तहत अर्थमेटिक मीन ही आता है। तो मैं इसी के बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। So let me repeat again, the mean may be arithmetic, may be geometric, may be harmonic, but as per the nature of your course will be confined to the discussion of arithmetic mean. Let us talk about the mean, what exactly it stands for. The most common measure of central tendency, of course, this is one of the most widely used measure of central tendency affected by extreme values, and that's about the partition value. जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, एक ये डेटा सेट है 0 1 2 3 4 पॉइंट्स 5 6 7 8 9 10. So यहाँ पे this the single figure, single observation item is called the data point. यानी जो अगर इसमें से आप एक को बताना चाहेंगे तो इसको ये डेटा पॉइंट है, यानी द सिंगल score is called the data point, and the all data points as a whole is called the data set. तो यहाँ पे 0 सबसे लोएस्ट स्कोर है, 10 हाईएस्ट है। तो इसमें से अगर हमको अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो हम ये सबको जोड़ देते हैं, और जितने को हम जोड़ते हैं उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो जस्ट यू लुक एट हियर, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. We are having 11 data points. I mean the number of observation items is 11. So first you have to add all these data points together, and the sum is to be divided by 11 to compute the arithmetic mean. तो आप ऐसा कर सकते हैं अपनी कॉपी में, आप 0 से लेके 10 तक ये 11 डेटा पॉइंट्स को जोड़िए, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो मीन मिलेगा, एवरेज वैल्यू मिलेगा, वो 5 मिलेगा। इसी तरह से आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स हैं 13 है, आई थिंक 0 to 10 and 2 more data points 12 and 14. तो ये सब को आप जोड़ेंगे, फिर 14 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ जाएगा। तो इस तरह से अर्थमेटिक मीन किसी भी डेटा सेट का एवरेज वैल्यू है। सारे वैल्यूज को हम जोड़ें और जितने वैल्यू को हमने जोड़ा है, जितनी स्कोर को हमने जोड़ा है, उतने से डिवाइड करें तो जितना आता है वो मीन है। So this is quite nominal concept. You might have studied in grade 5, 6, 2. That is just for revision. And our motto to describe mean here is for its application rather than just understanding the concept and the learning the skill to compute it. यहाँ पे मीन के डिस्कशन का मतलब आपको केवल इसके अवधारणा और इसकी गणना की कौशल बताना नहीं है। यहाँ पे इसका मूल उद्देश्य है कि आप ये कहाँ पे रिसर्च में निकाला जाता है, कहाँ इसको निकालना है, कहाँ इसका यूज करना है, इसको आप समझ सके। यानी द मेन कंसर्न ऑफ दिस teaching learning is more about the induction of the application attitude, whatever principles and concept statistics you will study in your paper. So it's the mean. Let me move ahead. Median. Median is a sort of central partition value. यानी मीन एवरेज वैल्यू है तो मीडियन एक तरह का पार्टीशन वैल्यू है। और this is
continuum of the data set. Just you can look at here. अब यहाँ से आपकी डेटा सेट का कंटिन्यूम शुरू हो रहा है और इसमें से आप एक सीजर ले आए, सीजर लेके बीचों बीच भाग में इसको काट दें तो ये 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा. You know, just you bring the scissor and cut it into 2 equal halves, and the point of cutting is called the median. यानी वह वैल्यू जो किसी भी डेटा सेट को 2 बराबर खंड में विभाजित करता है उसको हम मीडियन कहते हैं. तो मीडियन इस तरह से एक तरह का सेंट्रल पार्टीशन वैल्यू है, मीन एवरेज वैल्यू है. सो अब यहाँ पे कैसे निकालना है, हम मीडियन को कैसे निकालते हैं? तो मीडियन को निकालने के लिए आपको okay, let me talk about the concept first. तो मीडियन यानी किसी भी डेटा सेट को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है. यानी ये डेटा का एक थ्रेड है, इस थ्रेड को आपको 2 बराबर भाग में डिवाइड करना होगा. तो एक जगह सेंटर में काटना पड़ेगा, जहां पे इसको आप काटते हैं वही पॉइंट को हम मीडियन कहते हैं. तो मीडियन का कंप्यूटेशन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्रुप डेटा में और इंडिविजुअल सीरीज में अलग अलग तरीके से निकाला जाता है. अगर आप कोई भी मेथड लगाते हैं तो जो आंसर है मोर और लेस सेम आता है. बट आई मीन दैट the formula for the computation of median in case of the individual, discrete and continuous frequency distribution are different. अलग अलग फॉर्मूला है. अभी मैं आपको कंप्यूटेशन नहीं बता रहा, उसके लिए मुझे थोड़ी आपसे जो बोर्ड की भी साझेदारी करनी पड़ेगी, मुझे लिख के बताना पड़ेगा. सो let me clarify the concept here only. Median is the central partition value. I think you are very clear. So let me teach here how to compute median. Just let me use the pen. Okay, just you look at here, this is the first data set. How many number of data points are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Here the number of observation is equal to, okay, just 1 minute. Okay, so for this data set n is equal to 11, right? And you just look at here, how many data points are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. And here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Here n is equal to 11. Here n is 11, and here n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13. So 11 12 13. So how to compute the median here? Median is equal to n plus 1 by 2. N plus 1 by 2. That means here n is equal to 11. 11 plus 1 12. 12 by 2 is equal to 6. So sixth data point will be median here. तो साथियों यहाँ पे खास बात आपको ध्यान देना होगा, कभी भी आप मीडियन निकालें तो सबसे पहले आप डेटा को ऑर्डर में सेट करें. यू हैव टू सेट द डेटा in perfect order, either in ascending form or in descending form. So if you look at this data set, it's perfectly arranged in ascending order, 0 to 10.
So here the sixth value will be the median. So let us count and go up to the sixth value. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is the median. And here the sixth data point will be the median, that is 5. And again, you look at here we are having the 13 data points, and the median is equal to 13 plus 1 by 2. So 13 plus 1 is equal to 14. 14 divided by 2, 7. And the seventh will be the median. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This will be the median. So I mean that this is the way of computing median in case of the individual series. This is the example of individual series. Both ये भी और ये भी दोनों इंडिविजुअल सीरीज है. इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन इज इक्वल टू एमडी इज इक्वल टू होता है n प्लस 1 by 2th item. N is equal to the total number of data points. I think you understand. So median is the computation of central partition value. And let me move ahead and talk a little bit about the mode. So this is the case of mean. See, this is the mean value. This is the median value, right? Let us talk about the mode. Okay. मैं थोड़ी सी बात आपसे मोड की कर लेता हूं. मोड क्या है? मोड वास्तव में सेंट्रल वैल्यू तो नहीं है, ये मोस्ट फैशनेबल वैल्यू है. जैसे उदाहरण के तौर पर एक पेंटागन में व्यापारी को ये जानना है कि उसमें ट्रेंड्स में कौन सी गर्ल्स की ड्रेस उसको ज्यादा परचेज करना है, यानी स्टॉक में कौन सी गर्ल्स की ड्रेस उसको ज्यादा रखना है. तो पहले क्या करेगा कि इन दिनों लड़कियों के फैशन में यानी महिलाओं के फैशन में कौन सी ड्रेस है वो अपनी सेल के हिसाब से देख लेगा. अपनी पुरानी सेल में जाके या अपनी तरह अन्य शॉप्स में जाके कौन सी ड्रेस की ज्यादा डिमांड है, कौन सा ड्रेस ज्यादा फैशन में है, तो पहले मोस्ट फैशनेबल वैल्यू को आइडेंटिफाई करेगा. और फिर मोस्ट फैशनेबल वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद, डॉक्टर दिव्या, डोंट यूज द पेन, राइट? सो आई मीन दैट तो कौन सा ड्रेस महिला इन दिनों मार्केट में ज्यादा यूज करती है उसको ढूंढेगा, पहचान करेगा, उस हिसाब से खरीदेगा. तो मैं आपको यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेजर ऑफ टेंडेंसी के तहत हम मोड की बात करते हैं वो वस्तुतः सेंट्रल वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू मोस्ट फैशनेबल वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है. जस्ट यू कैन लुक एट here we are having the data set starting from 1 to 14. So the data point 1 has comes 1, 3 has comes 1, 5 has comes twice, 7 has comes 1, 9 has comes thrice, 10 has come once, 12 has come twice, 13 again has come once, and 14 has come once. So if we look at the most frequent value here, the most frequent value is the 9, and I mean this value has come 3 times, and the frequency of this 9 is the highest. It has frequency 1 has frequency 1, 3 has frequency 1 again, 5 has frequency 2, 7 has frequency 1, and the 9 has frequency 3, and the 10 has frequency 1, 12 has frequency 2, 13 has frequency 1, 14 has frequency 1. So if we look at the all data points here in continuum, 9 is having the highest frequency. So this is mode. And I think you understand here
again, a sort of data set is depicted, but just you look at here, all data points are arranged from the lowest to highest score, but all the data point has come once. It has frequency 1, again it has 1, this 1, 1, 1, 1, 1. तो यहाँ पे सभी जो डेटा पॉइंट्स हैं राइट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये सब की फ्रीक्वेंसी एक है, तो यहाँ पे मोड नहीं है. Here we could not see most frequent value in the entire data set. So this distribution has no mode, right? So I think you got the point. Mode is the most fashionable value, and in distribution, the data set having the highest frequency is called the mode. So in today's class, we could talk about the measure of central tendency, and let me sum up hereby. Mean, mode, and the median. All three are the measure of central tendency. Mean का मतलब होता है एवरेज वैल्यू, मीडियन का मतलब सेंट्रल पार्टीशन वैल्यू, एंड मोड का मतलब मोस्ट फैशनेबल वैल्यू. तो इस तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के तहत हम 3 तरह के स्टैटिस्टिकल मेजर के बारे में डिस्कस करते हैं और उनकी कंप्यूटेशन करते हैं. तो यहाँ पे एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक टेक होम मैसेज के रूप में समझाना चाहता हूँ. किसी भी डेटा के रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू हमें निकालना होगा तो हमेशा हमें मीन निकालना होगा. अगर आपकी क्लास में कोई आता है कि आपके एमडी में लोगों की एवरेज वेट कितना है, let's say I'm talking about your class. If somebody enters into your class and asks you what is the average weight of the MD students, then what you will do, आप सबके weight की से संबंधित डेटा लेंगे, फिर सबके weight को आप जोड़ेंगे, जोड़ के फिर जितने का आपने जोड़ा उतने से आप डिवाइड कर देंगे, तो जितना वैल्यू आएगा उतना आपका एवरेज वैल्यू होगा. तो if somebody comes into your class and questions you what is the average weight of your class, so just you will take the data of the body weight and add the body weights of the all classmates and will divide the sum by the number of classmates and that will be the average value. इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको किसी भी डेटा सेट को 2 भाग में डिवाइड करना हो, बीच में से सेंट्रली डिवाइड करना हो, तो आप मीडियन निकाल लेंगे. अगर किसी डेटा से संबंधित आपको मोस्ट फैशनेबल वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू आपको निकालना है, तो आप मोड निकाल लें, यानी मोड इज द मोस्ट फैशनेबल वैल्यू. तो जो डेटा को एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरह के सीरीज यूज होते हैं, individual, discrete, and the continuous. Let me repeat once more. We can express the raw data into 3 forms of frequency distribution. One is individual, and the second is the discrete, and third is the group data. I have to say continuous, an individual, discrete, and the continuous data. तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में ये मीन, मीडियन और मोड निकालने की जो फॉर्मूला है अलग अलग तरह के होते हैं. ये कैसे निकाला जाता है हम आगे की क्लास में आपके साथ साझेदारी करेंगे. और आज की मेरी डेलीब्रेशन मैं यहीं पे कस्टमाइज करता हूं और आपके साथ कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को इनवाइट करता हूं. लेट मी स्टॉप माय स्लाइड शेयर हियर बाय. आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और आपके पास कुछ सवाल हो तो आप सवाल कर सकते हैं.
Okay. Hello everyone, please turn on your video and ask if you have any questions, please. आप हैंड रेज करिए तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। यदि मैं आप पूरा ओपन कर दूंगा तो नॉइज क्रिएट होता है, क्लास रिकॉर्डिंग में है, इसीलिए to inhibit the possible online interruptions, I sincerely advise you to raise your hand if you have any question. I'll unmute accordingly and answer. मैं किसी की हैंड रेज नहीं देख रहा हूँ। लेट मी फर्स्ट अनम्यूट अपूर्वा। डॉक्टर अपूर्वा, आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर अपूर्वा, आर यू देयर? यस। अनम्यूट करिए। यस। माइक्रोफोन अनम्यूट करिए। Yes, sir. Yes. All right. So, do you have any question? No, sir. No. Okay. So, see, I have a research question, and see, you are the pharmacologist, right? Yes, sir. And this is the time of the COVID pandemic, and there are varieties of herbal formulations to prevent and moderate the COVID infection. And as a pharmacologist, you have to purchase so many medicines to put in your stock. And how you will come to know which medicine should be purchased at maximum? सवाल समझ में आ रही है? Sir, this is my first lecture. So what? So what? We just discussed about the measures of central tendency, right? Mean, mode, median. Just I'm asking simple question. क्या आप एक फार्माकोलॉजिस्ट है, कोविड का समय है, आपको डिस्पेंसरी में दवा खरीदनी है, कोविड की अलग अलग दवाएं हैं, कौन सी दवा ज्यादा खरीद के रखना है, ये आप कैसे जानोगे? You need some time to think. No issue. Yes. Okay. अब सेम क्वेश्चन जाता है अनुसुईया को। डॉक्टर अनुसुईया, turn on your video, unmute your microphone. Please answer. Dr. Anusuya. Yes, I have allowed you to unmute your microphone, Dr. Anusuya. Hello. Yes. Yes, sir. Yes, video on करिए। सामने नहीं आ रहा। Hello. Yes, sir. Yes, बताइए। मैंने जो सवाल पूछा था उसका आंसर बताइए। सर मेजरली देखिए कि कौन सी टैबलेट से ज्यादा इफेक्ट हो रहा है पेशेंट्स को, तो वो वाली टैबलेट ज्यादा यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप मीन निकालोगी, मीडियन निकालोगी, मोड निकालोगी। सर आई थिंक मीन निकालना चाहिए। मीन निकालना चाहिए। I am not sure. Let me verify your point by Dr. Archana. Dr. Archana, now you are unmuted. You please justify the point made by Dr. Anusuya. Sir, median के through. No, sir, mode, most fashionable value. Right. So how you will compute the mode in such case?
how you will generate the data for the computation of mode. What strategy you will follow for that? Yeah. Dr. Archana, turn on your video so that I will be more comfortable. ये सारे लोग वीडियो को ऑन कर लीजिए. During Q&A, you all are advised to turn on your video, right? Everybody. अब इंटरनेट थोड़ा इंश्योर कर लीजिए. आप घर में बैठे हैं तो आपकी नाश्ते पानी का खर्चा तो बच ही रहा है ना, चाय पानी का पैसा तो बच ही रहा है. तो एटलीस्ट you know manage just good pack and ensure your connectivity and the video display during question answer. Okay. So Dr. Archana, I was asking you how you will generate the data to compute the mean and to decide which drug is to be purchased more to put in your stock as a pharmacologist. Incidentally, you are not pharmacologist, you are the physician, but imagine, okay. Anyway, so okay, let me move back to the next question. अगर आप हाथ उठाओगे तो सवाल आप पूछोगे, अगर हाथ खड़े नहीं करोगे तो सवाल मैं पूछूंगा. But class will not be passive, right? This is the class of research methodology, not a sort of, you know, the Samhita class to listen some sort of sloka. This class targets the induction of knowledge and skills to carry out the research, especially your research in MD level. अर्चना से मैं आगे बढ़ता हूँ. So let me move to the Chandramohan ji. Yes, Chandramohan. Yes, sir. Do you have any question to ask me? No, sir. No. So I have, sir. Yes. मेरा सवाल ये है कि people are so worried about the ongoing COVID-19 infection, and there are some medical claims still having the RT-PCR negative. People are also infected by COVID-19 and people are dying. ये ऐसा केस हो रहा है. RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, फिर भी लोग मर रहे हैं, कोविड उनको है. तो one of the, you know, the prominent indicator of COVID-19 infection is the SpO2. I think when the oxygen saturation goes below 92, that is a sort of red signal. ये सभी लोग बोल रहे हैं. तो मेरा सवाल ये है, आपके पूरी क्लास के एमडी में का जो SpO2 का लेवल कितना है? यानी अगर मैं आपको ये जानना चाहूँ, आपके जो क्लासमेट है एमडी के, सबके में ओवरऑल SpO2 का लेवल कितना है, ये मैं जानना चाहता हूँ. दिस इज माय क्वेश्चन टू यू. व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल कंप्यूट? सर मैं मीन निकालूंगा इन सब का, जितने हैं सब इनके सम कर सर डिवाइड कर दूंगा इनके टोटल नंबर से. वेरी गुड, वेल डन. आप सबके SpO2 मेजर कर लेंगे पल्स ऑक्सीमीटर से, फिर सबको जोड़ेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे, एंड दैट विल बी द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ SpO2 फॉर ऑल क्लासमेट्स. वेरी गुड, वेल डन. Okay, so let me move to the next. Harsh, I think Harsh. Dr. Harsh. Yes, sir. Yes. और मान लीजिए कि आप ऋषिकेश के एक व्यापारी हैं. जी सर. अब आप व्यापारी बन भी सकते हैं, डॉक्टर के पेशा में व्यापार होता है, हेल्थ केयर में व्यापारी हैं. आप एरोमा थेरापी में काम करते हैं. लेट्स से यू आर वर्किंग समवेयर इन एरोमा थेरापी. ऋषिकेश में आपका हॉस्पिटल भी है और आपने एरोमा थेरापी के लिए एसेंशियल ऑयल भी रखा हुआ है. तो आपको 5-6 तरह के एसेंशियल ऑयल लाना है. सैंडलवुड, जैस्मिन, राइट, लेवेंडर, इस तरह से, मिंट, पिपरमिंट. तो कौन सा एसेंशियल ऑयल ज्यादा खरीद के रखना है स्टॉक में, आप कैसे जानेंगे? सर उसके लिए एक तो सर वो देखेंगे सर पेशेंट, मतलब पेशेंट के हिसाब से कि उसकी एफिकेसी ऑयल की. ओके. सो अब मैं
I will be not able to ask the question to the whole students. Still, your figure is limited. मैं कर तो सकता हूँ थोड़ा, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ. I'm not sure your answer is correct or not. That is to be justified your classmate only. Let me move to the second candidate, Lata. So Lata, हर्ष जी कह रहे हैं ये बात आपको गले पे उतर रही है क्या? उनका आंसर सही है? सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई. क्वेश्चन ये है कि आप ऋषिकेश में एरोमा थेरापिस्ट हैं, आपके पास एसेंशियल ऑयल्स का दुकान है और आपको मार्केट के नीड के हिसाब से आपने स्टॉक में अलग अलग तरह की एसेंशियल ऑयल खरीद के रखना है. लेवेंडर, जैस्मिन, सैंडलवुड, मिंट, पिपरमिंट, लाइक दिस, नीम. ठीक, कौन सा स्टॉक में आपको ज्यादा ऑयल रखना है आप कैसे जानेंगे? तो जिसकी मार्केट में डिमांड होगी. हाँ, तो उसको मार्केट में जिसका सबसे अच्छा डिमांड है वो कैसे पता करोगी? क्या निकालोगी उसमें? मीन निकालोगी, मोड निकालोगी, मीडियन निकालोगी? सर मोड. मोड निकालोगी. वेरी गुड. You all are wise people, okay? Monica, Dr. Monica, you have any question? Dr. Monica? चलिए, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ. हम बोलेंगे सर हम छोटे बच्चे थोड़ी ना आप होमवर्क देंगे हमको. हाँ, मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूँ. जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे तो रिसर्च नहीं सीखेंगे. रिसर्च इज लर्निंग बाय डूइंग. जब तक आप नहीं करेंगे ग्राउंड रियलिटी में तो आप नहीं सीखेंगे. तो मैं क्या होमवर्क दे रहा हूँ, आप सब लोग नोट कर लीजिए. मैं स्लाइड शेयर नहीं कर रहा हूँ, आपको कॉपी में नोट करना है. आपको अपने क्लासमेट की SpO2 की, बॉडी वेट की, SpO2, बॉडी वेट, ब्लड प्रेशर और BMI. मैंने 4 वेरिएबल आपको बताया. SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन, सेकेंड ब्लड प्रेशर, थर्ड बॉडी वेट, फोर्थ BMI. और जब मैं BMI की बात कर रहा हूं तो हाइट भी आपको लेना ही पड़ेगा, राइट? दैट इज kg/m². सो ये आपको अपनी क्लास की सबकी डेटा लेनी है. Means you are generating the self data, not taking the data as such from the textbook. No, रिसर्च में ऐसा नहीं करना है. हम ऐसे लर्न, जब तक हम ग्राउंड रियलिटी में नहीं जाते हैं तब तक लर्निंग नहीं होती. आपको अपने क्लासमेट की SpO2 यानी ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स एंड बॉडी वेट, इसकी डेटा जनरेट करनी है. आप दोस्तों को ग्रुप में डालिए. और कोई बात नहीं, गर्ल्स को कभी कभी ये दिक्कत होती है एज बताने में. तो आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, क्या दिक्कत है आपको? ठीक है, आप इतने बूढ़े भी कहाँ हैं कि आपको ये छुपाना पड़े. तो ऑल आर वेरी यंग. ये डाटा बनाइए और ये चारों आउटकम में से संबंधित आप मीन निकालिए, मोड निकालिए, मीडियन निकालिए. अंडरस्टैंड? ये चारों डेटा से आपको मीन भी निकालनी है, मोड भी निकालनी है, मीडियन भी निकालनी है. ये आप मुझे प्रेजेंट करेंगे कल. मैं कल सिंपल रैंडम सैंपलिंग के द्वारा 5 को होस्ट बनाऊंगा और उनकी होमवर्क की प्रेजेंटेशन कराऊंगा. पहले आपने जो डेटा आज क्रिएट किया है उसमें से जो ये अलग अलग निकाला है, फिर उसका प्रेजेंटेशन कराऊंगा, फिर अपनी बात आगे करूंगा. तो मुझे आज आपकी क्लास में इतनी बातें करनी थी. हम थोड़ी थोड़ी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल के साथ पढ़ेंगे तो विषय वस्तु लर्न होगा और आप इस नॉलेज को अपने रिसर्च में यूज कर पाएंगे. मुझे लगता है आपकी संख्या कितनी ही है इसमें? साक्षी इज हियर, आई थिंक शी आर. हाँ साक्षी, मुझे बताइए. CR डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर साक्षी. यस सर. हाँ, आपके क्लास में कितने लोग हैं? सर 20 है. आप अटेंडेंस मार्क करते जाना, ठीक है? मैं यहाँ स्क्रीनशॉट तो लूंगा, फिर भी आप मार्क करके मुझे एक बार मैसेज कर दीजिए. 20 लोग हैं तो आज के क्लास में 15 लोग हैं. हो सकता है आज क्लास इंसिडेंटल हुआ है, इसी वजह से जुड़ ना पाए हो. सर 16 थे, अभी किसी का शायद डिस्कनेक्ट हो गया है. ऑल राइट, नो इशू.
तो टोटल 20 है ना? Yes, sir. तो कोई बात नहीं, इट्स गुड फिगर, गुड नंबर। स्टिल आज क्लास मैंने एकदम से लिया था तो इतने शॉर्ट नोटिस में सबको पता भी ना चला हो। तो ये क्लास की कल 12 बजे मैं ले लूँगा, आप टाइमली इंटीमेट कर दीजिए, लिंक भी भेज दूंगा। और मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि क्लास आप न छोड़ें, शुरू से आप छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे तो लास्ट में जब हम डेटा एनालिसिस से संबंधित जो टेस्ट पढ़ेंगे तो आपको जचेगा पचेगा। आप एकदम से क्लास को आगे स्किप करेंगे तो लर्निंग में मुश्किल होगी। और वैसे आप लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, फिर भी मेडिकल वालों को मैथमेटिक्स में थोड़ी सी डर सी लगती है, ऐसा मैंने देखा है। वैसे इतनी डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लगती है। कोई बात नहीं, हम आपको धीरे धीरे बिल्कुल चम्मच से खिला देंगे और सिखा देंगे, बिलीव मी सिखा देंगे। आप वो चीज़ सारे कर लोगे जितना आपको करना चाहिए, अच्छा नंबर भी ले आओगे। अब आपके रिसर्च प्रोजेक्ट में फैंटास्टिक डेटा एनालिसिस कर लोगे अगर आप सही से चल पड़े, अच्छा पढ़ाई किया, अब मेरे को मोटिवेट किया तो आपको सॉफ्टवेयर भी सिखा दूंगा लास्ट में, ठीक है? तो आज की बात हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगेन एक बात मुझे कहना था, मैं आपकी कोई भी क्लास लूंगा तो अधिकांश क्लास रिकॉर्डिंग में होंगे, तो आप कोशिश करिएगा कि साइड नॉइज को आप इनहिबिट करें और क्लास में इंटरप्शन ना हो। आज की बात समाप्त, हम कल मिलेंगे। चलिए एक बार मैं अटेंडेंस का शॉट ले लेता हूँ, 1 मिनट। आप वीडियो ऑन कर पाते तो ज्यादा अच्छा था, ये सबको सब दिखते हैं। 1 मिनट, जस्ट 2 मिनट आप कर लीजिए तो आपका अटेंडेंस में सबका ये आ जाएगा। वेरी गुड, ऑल राइट। और ऐसे ही आप अपने जो ओपीडी में काम करते होंगे ना, तो पेशेंट की अलग अलग डेटा क्रिएट करिए, क्रिएट करके जो जो हम कॉन्सेप्ट या स्टैट में पढ़ेंगे उस डाटा से, रियल डाटा से आप कंप्यूट करिए, ठीक है? आज की बात समाप्त, कल मिलेंगे नया जोश होश और विषय वस्तु के साथ। तब तक आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।